welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Amitabh Bachchan celebrates 81st birthday with fans at Jalsa. Aamir Khan confirms daughter Ira Khan and Nupur Shikharia getting married on 3rd January 2024. Animal song hua out. Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna share passionate kiss in romantic track. Aamir Khan's next film is Sitare Zameen Par, theme similar to Tare Zameen Par. Prestigious the 69th Filmfare Award 2024 से पहले फिल्मफेयर ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में गुजरात टूरिज्म के कोलैबोरेशन से होस्ट किया फिल्म मेकर्स के साथ एक राउंड टेबल इवेंट। टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन की प्रेजेंस में इस इवेंट को ग्रेस किया गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। और फिल्म मेकर्स के राउंड टेबल इवेंट को यहां ग्रेस करते नजर आए बोनी कपूर, आनंद एल राय, आर बाल्की, इम्तियाज अली, मधुर भंडारकर, नितेश तिवारी, जैकी भगनानी, जमुना दास, मजीठिया, निखिल अडवाणी, कृष्णा डीके एंड राज, निधि मोरू जैसे कई रिनाउंड फिल्म पर्सनालिटीज। बता दें कि प्रेस्टिजियस द 69th फिल्मफेयर अवार्ड 2024 इस बार 28 जनवरी को गुजरात में होने जा रहा है। फिल्मफेयर के होस्ट किए हुए इस इवेंट में पहुंचे सेलेब से रुद्रानी चटुराज ने जूम के लिए एक्सक्लूसिवली बात की। Hello everyone, I'm Rudrani and I am at this very important event which is of course talking about the collaboration with Filmfare and Gujarat Tourism, along with of course having a very fruitful discussion with the government of Gujarat regarding about films and so much more. I have a very important actor producer who is an prominent part of this Indian film industry, Mr. Jackie Bhagnani joining in. It is such an important day because a collaboration like this is so fruitful for our film industry, right? As a producer, I would like your viewpoints on that. I think it's amazing. I think it's very, very good that, the Filmfare and, Gujarat Tourism is doing this. We have so much culture in our country. We have so many locations in our country and I think a lot of virgin locations which are not exposed. I have personally shot a lot in Gujarat. I shot Mitron there, I shot Kamariya there. I played Gujarati in most of my films. So a lot of people who don't know I'm Sindhi think I'm Gujarati. So yeah, it's lovely. Films and tourism always go hand in hand because it's all about awareness and it's all about when you see it in a particular depiction in a song or a film, you feel मुझे भी वहाँ जाना है और ऐसे ही enjoy करना है उस particular जगह को. So it really has a lot of impact and if it's done correctly, it's always good. See, एक फिल्म मेकर के लिए, एक स्टोरी टेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब वो अपने किरदार चुनता है, एक्टर्स चुनता है, उसी तरह वो लोकेशन चुनता है। लोकेशन कभी उसके लिए सिर्फ दीवारें और रोड और सड़कें और मॉन्यूमेंट्स नहीं होती, वो भी अपने आप में एक पूरा कैरेक्टर होता है। सो इट्स अ ग्रेट टू हैव दीज काइंड ऑफ एसोसिएशन वेयर वी विल बी एबल टू टेल आवर स्टोरी इन अ बेटर वे बिकॉज अगर सपोज आप गुजरात जा रहे हैं तो आप सिर्फ वहाँ के मॉन्यूमेंट्स कैप्चर नहीं करेंगे, वहाँ का फील लेके आएंगे अपनी कहानी के अंदर और एज अ स्टोरी टेलर ये आपको बहुत हेल्प करता है। सो दीज एसोसिएशन विल डेफिनेटली make us do stories in a better way. Gujarat is a border state of Maharashtra and there are quite a few good locations around the border of Maharashtra, Gujarat, and there are some studios also which are there. Ramanand Sagar has a studio, Ibrahim Nadiadwala has had a studio, he still has a studio, and there are plenty of other locations which are almost virgin, not been exploited. This is it. Surat also today is a developed city, Baroda also is a developed city, Ahmedabad is almost like a metro. So, the filmmakers can have a varied choices where Gujarat is concerned. And if you've got to shoot a film which is depicting metro,
Earlier we had choices between Bombay, Bangalore, Hyderabad. Later maybe Pune. Now probably Ahmedabad and Surat and Baroda can be added to that list. We're always looking at different places and avenues of growth, and then when you have two really prominent players, one, an entire government body that is taking an initiative, and then we've got a standing portal solution, information daily, that gives you the connection and becomes the medium, for people to watch films, to know about film stars. So it's Filmfare and it's the government of Gujarat coming together, and it's wonderful because now we have newer avenues and newer opportunities to make a difference and tell stories that we've been wanting to tell. I think it's very, very interesting because, something like this is very beneficiary to all of us, to us as film industry and also to the government because, we need to kind of expand our horizons and to have some sort of encouragement from a state government, which is from our nation. I mean, we are getting so many foreign policies from so many nations abroad, and they attract us to go there and spend money there. But if we have something from our own nation, it's always very, very interesting. And Gujarat has some beautiful locations. There, as they said in the meeting, that we are welcoming everybody, and they are always very nice people, very bright people. So it's looking forward to actually work with the Gujarat government. The decision to host the film fair in Gujarat is, I think, a very good move on behalf or on part of the Gujarat state. I think it all seems like there will be some more shooting in Gujarat, and shooting is also something which encourages more shooting because it also develops the infrastructure for a state. So that is likely to happen. I have a producer who's always been interested in contributing to Indian film industry. Of course, Vinod Bhanushali ji, जिन्होंने अपना खुद का production house अभी काफी time से start किया है, and he's doing amazing films. How it's going to really impact in a great way to our film industry. So see, Gujarat is location-wise, वहाँ पे sea भी है, वहाँ पे desert भी है, वहाँ पे architectural भी marvels हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो कि फिल्म में एक फिल्म जब आप देखते हो तो आपको आंखों को जो अच्छा लगता है वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं. प्लस गुजरातीज लॉट ऑफ बहुत सारी फिल्में देखते हैं वो लोग. सो आई थिंक ऑल सेट एंड डन. अब कहानियाँ लिखनी चाहिए कि वहाँ पे जाके भी हम लोग शूट करें. उधर में जैसे हम लोग यूपी जाते हैं तो यूपी की कहानी होती है, जैसे गुजरात में बहुत सारी कहानियाँ हैं. सो नाउ एंड सिंस द गवर्नमेंट इज सो सपोर्टिव एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मेड फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन हाउस लाइक अस, कि आप आइए वहाँ पे और गुजरात की खूबसूरती और गुजरात के लोगों का जो अपना टेस्ट है या गुजरात के लोगों की कहानी है आप डाल दिए. सो वी डेफिनेटली प्लानिंग सम हिंदी फिल्म्स, गुड हिंदी फिल्म्स. अब राइटर्स को बोलेंगे कि वहाँ पे लिखो, उनकी कहानियाँ लिखो. अमिताभ बच्चन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 81st बर्थडे. जी हाँ, इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कंप्लीट कर लिए हैं 81 इयर्स. और इस मौके पर बिग बी के फैंस से लेकर फैमिली और फ्रेंड्स के प्यार ने उनके बर्थडे को बना दिया बी टाउन की सबसे स्पेशल ओकेजन. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. और हम जहाँ खड़े रहते वहाँ से लाइन शुरू होते हैं. इस स्टोरी में आगे हम आपको दिखाएंगे कि फैंस कैसे बिग बी के बंगलो जलसा के बाहर उन्हें विश करने पहुंचे. बिग बी ने कैसे फैंस के लिए दिखाया अपना प्यार, और फैमिली के अलावा इंडस्ट्री कैसे विश कर रही है अमिताभ बच्चन को उनके बर्थडे पर. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए फैंस के प्यार से. वैसे तो फैंस से मिलने बिग बी हर एक संडे को बाहर आते हैं, पर जब ओकेजन था उनके 81st बर्थडे का, तो फैंस का हुजूम उनके बंगलो के बाहर बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही इकट्ठा हो गया. और फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ अमिताभ बच्चन का बर्थडे, अमिताभ बच्चन ने बाहर आकर फैंस को वेव किया और फैंस के इस प्यार के लिए दिखाया अपना ग्रैटिट्यूड. अपने बर्थडे पर अमिताभ बच्चन की फैंस से मुलाकात का ये वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जलसा की एंट्रेंस पर
ऐश्वर्या राय बच्चन भी डॉटर आराध्या बच्चन और नीस नव्या नवेली नंदा के साथ नजर आ रही हैं। खैर, बाद में ये भी सुनने में आया कि ऐश्वर्या उस वक्त अभिषेक बच्चन के साथ वीडियो कॉल पर थी, क्योंकि अभिषेक थे शूट पर और ऐश्वर्या नहीं चाहती थी कि अभिषेक बच्चन उनके फादर और फैंस की मीट का ये स्पेशल मोमेंट मिस करें। यानी ऐश्वर्या ने तो ग्लोरियस मोमेंट विटनेस किया ही, साथ ही हबी अभिषेक बच्चन को भी इस यादगार पल की झलक दिखा दी। और फिर अभिषेक बच्चन ने भी फैंस के साथ बिग बी के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाकर सोशल मीडिया पर ये कंफर्म कर दिया कि वो ऐश्वर्या के साथ वीडियो कॉल पर थे। जहां तक बात है बिग बी के बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान्स की, तो पता चला है कि बच्चन फैमिली ने फैमिली मेंबर्स की प्रेजेंस में एक बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से फ्रेंड्स और कई सेलेब्स भी अमिताभ बच्चन को बर्थडे पर विश करते नजर आए। आशिक कभी बढ़ते नहीं, दफनाए जाते हैं। कब्र फाड़ के देखे तो इंतजार में पाए। अमिताभ जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका शरीर मस्त रहे, व्यस्त रहे और निरोगी रहे, यही भगवान से दुआ है। आमिर खान ने रिवील कर दी है फैमिली में होने जा रही ग्रैंड वेडिंग की डेट। वेल, बात हो रही है आमिर खान की डॉटर ईरा खान और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखारे की वेडिंग की, जिसका इंतजार दोनों की लास्ट ईयर नवंबर में हुई एंगेजमेंट के बाद से ही हो रहा है। तो किस डेट को ईरा खान और नुपुर शिखारे की होगी वेडिंग, और डॉटर की वेडिंग को लेकर क्या है आमिर खान की तैयारी, चलिए आपको दिखाते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में हुई ईरा खान और नुपुर शिखारे की एंगेजमेंट सेरेमनी में कई बी टाउन सेलेब्स स्पॉट हुए थे। तभी से आमिर के फैंस इंतजार कर रहे हैं आमिर खान की डॉटर ईरा की स्टार स्टडेड वेडिंग सेलिब्रेशन की। और अब खुद आमिर खान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील कर दिया है डॉटर ईरा खान की वेडिंग डेट को, जो है एट द बिगिनिंग ऑफ 2024। आमिर खान ने डॉटर की वेडिंग डेट रिवील करते हुए कहा, ईरा इज गेटिंग मैरिड ऑन January 3rd। द बॉय शी हैज चोजन इज, वैसे तो पेट नेम उनका नाम पोपॉय है। He is a trainer. He has arms like Popeye, but his name is Nupur. He is a lovely boy. आमिर खान ने नुपुर को प्रेज करते हुए ये भी कहा कि जब उनकी डॉटर ईरा डिप्रेशन से गुजर रही थी तो नुपुर हमेशा ईरा के लिए ऑक्सीजन बनकर उनके साथ रहे। आमिर ने कहा कि उन्हें ईरा और नुपुर को इस तरह साथ देखकर खुशी है, और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। और फिर आमिर ने हर एक फादर की लाइफ में आने वाले उस मोमेंट को लेकर भी बात की जब उनकी बेटी विदा होती है। आमिर ने कहा, मैं तो बड़ा इमोशनल होता हूँ भाई, उस दिन मैं बहुत रोने वाला हूँ, ये तो तय है। Discussions have already begun in the family that आमिर को संभालना उस दिन, because I am very emotional. I can't control my smile nor my tears. Well, तो फाइनली अब वो दिन दूर नहीं जब आमिर खान समधी बनकर बारात के स्वागत में खड़े नजर आएंगे। And we promise, वो नजारा भी हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। ये है रणबीर कपूर के वायलेंट अवतार वाली एनिमल में आरके के रोमांटिक अवतार की झलक। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल के फर्स्ट न्यूज सॉन्ग ने आते ही जीत लिया है फैंस का दिल। इस सॉन्ग के साथ ही आरके और RM का लिप लॉक भी सुर्खियों में आ गया है। तो क्या कुछ खास लेकर आया है हुआ मैं सॉन्ग, ये तो हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि फैंस एनिमल के इस सॉन्ग पर कर रहे हैं कैसे रिएक्ट। एनिमल की झलक में रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं शेर, और अब जब टीजर के बाद सॉन्ग हो गया है रिलीज तो आप खुद ही देख लीजिए कि इस शेर के मुंह में खून कब और कैसे लगा। वेल जोसेफ आर्ट्स एनिमल का फर्स्ट सॉन्ग सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। दरअसल ये है ड्रीमी नजारे वाला सॉन्ग, जिसमें रणबीर पूरी फैमिली के सामने रश्मिका को लिप लॉक करते दिखाई दे रहे हैं। फिर रणबीर रश्मिका को लेकर जाते हैं यूनिक डेट पर, और फिर देखिए जब रणबीर और रश्मिका का प्यार उड़ान भरता है तो दोनों प्लेन उड़ाते भी नजर आते हैं। पर ये तो आप भी देख सकते हैं कि रियल लाइफ लव बर्ड्स यहाँ प्लेन कम उड़ा रहे हैं और चोंच ज्यादा लड़ा रहे हैं।
रणवीर अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को शू पहनाते नजर आ रहे हैं। दोनों ट्रैवल करते हुए एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल प्लेसेस विजिट करते भी नजर आ रहे हैं। बस इन्हीं मैजिकल मोमेंट्स की वजह से ऑडियंस के दिलों में ये सॉन्ग घर कर गया है और फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स सॉन्ग की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा दिस सॉन्ग इज मैजिकल, तो एक दूसरे यूजर ने लिखा व्हाट अ सिंगिंग, व्हाट अ लिरिक्स, परफेक्ट सॉन्ग। तो वहीं एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा वाओ व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ वाइब, आई लव्ड इट। एनिमल के सॉन्ग के लिए फैंस की क्रेज ने इसका क्लियर हिंट दे दिया है कि एनिमल की सक्सेस भी कबीर सिंह वाले ट्रैक पर जा सकती है। पर एनिमल की सक्सेस कितने आगे जाएगी वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. आमिर खान ने अनाउंस कर दी है अपनी नेक्स्ट फिल्म। 2007 की रिलीज तारे जमीन पर के बाद अब आमिर बनाने जा रहे हैं सितारे जमीन पर। यस, यू हर्ड इट राइट। तो क्या सिमिलर साउंड करने वाले इस टाइटल के साथ आमिर लेकर आ रहे हैं एक और इमोशनल फिल्म? वेल, आमिर ने इसका जवाब भी दिया है और हिंट भी किया है कि ऑडियंस और फैंस उनकी फिल्म से कर सकते हैं क्या एक्सपेक्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म के अनाउंसमेंट से जुड़ी सारी डिटेल्स। जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है कि सितारे जमीन पर का जरूर होगा आमिर की 2007 की रिलीज तारे जमीन पर से कोई ना कोई कनेक्शन। तो बता दें कि खुद आमिर ने कंफर्म किया है कि इस फिल्म में भी है सिमिलर थीम, लेकिन ट्रीटमेंट होगा काफी अलग। आमिर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा, I have not spoken about it publicly and I won't be able to say much now also, but I can tell the title. The title of the film is Sitare Zameen Par. You must have remembered my film Tare Zameen Par, and the name of this film is Sitare Zameen Par because we are moving 10 steps ahead with the same theme. Tare Zameen Par was an emotional film. This film will make you laugh. इतना ही नहीं, तारे जमीन पर से सिमिलर थीम की बात करते हुए आमिर ने कहा, But the theme is the same. That's why we kept this name very thoughtfully. We all have flaws, we all have weaknesses, but we all also have something special. So we are taking forward this theme, but this time the character of the special child is Shan in that film. My character helps that character in Tare Zameen Par. In Sitare Zameen Par, those 9 boys who have their own issues, they help me. It's the opposite. सितारे जमीन पर के अनाउंसमेंट से पहले ही आमिर की प्रोड्यूस 3 अपकमिंग फिल्म्स न्यूज में हैं। इनमें पहली फिल्म है किरण राव की डायरेक्टोरियल लापता लेडीज, दूसरी है सन जुनैद खान स्टारर और थर्ड फिल्म है सनी देओल स्टारर लाहौर 1947, जिसे बना रहे हैं राजकुमार संतोषी। और अब इसी लिस्ट में जुड़ गया है आमिर की एक और फिल्म का नाम, जो है सितारे जमीन पर। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.